Hello guys, this is Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 25 of this playlist, we are going to see a standard problem that is palindrome partitioning. Okay, so obviously we will start from recursion and उसके बाद हम उसका memoized version और top down approach देखने वाले हैं, ठीक है. But before this, if you haven't watched previous videos of this playlist, that is of MCM, matrix chain multiplication, उसमें मैंने आपको रिकर्जन और मेमोजाइज वर्जन दोनों बताया हुआ है, ठीक है. कैसे आप उसका रिकर्जन बिल्ड कर सकते हो और क्या क्या एक एमसीएम प्रॉब्लम, एमसीएम की जितनी भी वेरिएशन प्रॉब्लम्स या फिर चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स होंगी उसमें आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, वो सब बताया हुआ है, ठीक है. तो इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज, जस्ट गो एंड वॉच देम बिकॉज ऑब्वियसली दोज वीडियोज आर प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस वीडियो. And before starting this video, that is palindrome partitioning, let's just see what is Newton School. So basically, Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Like their first program is Pay After Placement program, okay, in which they will teach you for 6 months. They will make you a full stack developer, and after that, not only this, they will also get you placed in these different companies which they have tie up with, okay. And the most amazing thing about this program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies for minimum 5 lakh CTC, okay. So which is also amazing thing. And you can see here also that application for full stack development course for September batch is open now, so you can apply now for free, and whenever you get placed, only then you will pay them, okay. So if you want to know more about this, just come to newtonschool.co and check their Pay After Placement program. Second thing is their launchpad initiative, under which they have different things for you and different courses for you, especially for free, okay. So you just need to come to their website, log in or sign up for free and start learning. They have different courses for OOPS, for core subjects, for web development, for app development, and for everything. So if you want to learn for free, just come here and start learning. You will also get certificates after completion of courses, and you can also solve quizzes here and everything. So, and at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we are uploading regular videos in these playlists like dynamic programming, JavaScript, data structures and algorithms, C++, okay. So you can just get regular updates in these playlist videos and you can learn everything from here. Now let's just begin our today's video, that is palindrome partitioning, okay. So इसका सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है. इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी हद तक इसके जो नाम है क्वेश्चन का उसी से समझ में आ रहा होगा. पैलिंड्रोम पार्टीशन, ओके. अब एग्जैक्टली ये कह क्या रहा है, तो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है हमारा. सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग एस और वो एस स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, ठीक है, फाइन. अब मैं बोलूं फॉर सपोज कि मुझे इस स्ट्रिंग में पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स निकालनी है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग्स. आई होप आप यहाँ पे डीपी पढ़ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पैलिंड्रोम पहले से पता होगा क्या होता है, ठीक है. पैलिंड्रोम होता क्या है एग्जैक्टली, अगर जो तुम्हारी एक स्ट्रिंग एस है, सपोज DALDA, डालडा, ओके. सो और यू कैन से, ये तो हिंदी में हो गया, सॉरी फॉर दिस, यू कैन से ABCBA, ठीक है. ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है. वाई, तुम इसको स्टार्ट से एंड की तरफ पढ़ो या फिर एंड से स्टार्ट की तरफ पढ़ो, तुम देखोगे कि सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं. स्टार्ट से एंड की तरफ ABCBA एंड एंड से स्टार्ट की तरफ ABCBA, ओके, फाइन. सो ये होता था पैलिंड्रोम. अब एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तुम्हें एक स्ट्रिंग एस गिवन है, ओके, और तुम्हें इस स्ट्रिंग में पार्टीशंस करने हैं. सपोज मैंने यहाँ पार्टीशन की है इसमें, इस स्ट्रिंग में, ठीक है. मैं इस स्ट्रिंग में पार्टीशन करके दिखाता हूँ. मैंने ये किया एक पार्टीशन, मैंने एक पार्टीशन ये किया, ठीक है. और अब तुम देखोगे कि जो पार्टीशन से हमें सब स्ट्रिंग्स मिली, दैट इज एक सब स्ट्रिंग हमें ये मिली, एक सब स्ट्रिंग हमें ये मिली और एक सब स्ट्रिंग हमें ये मिली. ये सारी की सारी पैलिंड्रोम है कि नहीं. ये देखो ABA है, CC है, DBBA, और सॉरी यू कैन से यहाँ पे एक D, यहाँ पे एक A और D और बढ़ा दो, ठीक है. अब तुम बोलोगे कि ये भी एक पैलिंड्रोम है, हाँ है, DBBAD
और यहाँ पे अभी थोड़ा सा और मैं इसको, अब देखो ये भी एक पैलिंड्रोम है, हाँ है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड डी बी बी ए ए बी बी डी, ठीक है, और यहाँ से पढ़ो और यहाँ से पढ़ो, एक पैलिंड्रोम है। ओके, तो अब मैंने किया क्या, मैंने 2 पार्टीशन टोटल किए और मैंने उन 2 पार्टीशन से 3 पैलिंड्रोम निकाल लिए, ठीक है। अब एक तरीका इसका और पैलिंड्रोम्स निकालने का क्या हो सकता है, ए सी डी बी, ठीक है। अगर मुझे इस स्ट्रिंग से पैलिंड्रोम्स निकालने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे पार्टीशन कर दूं, ये अकेला पैलिंड्रोम है, हाँ है, ये अकेला पैलिंड्रोम है, हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है, ठीक है। सारे के सारे लेटर्स अकेले सिंगली पैलिंड्रोम तो होते ही होते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। बट ऑब्वियसली ये मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या, मैं बोलूँगा कि मैं सारे सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को पैलिंड्रोम बना दूँ और यही मेरे नंबर ऑफ पार्टीशन हो जाएंगे। तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस बताने हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन जो है, अब वहाँ पे ये तुम्हें समझ में आने लगा होगा कि ये कुछ डीपी का क्वेश्चन बन गया। मुझे करना क्या है, मुझे किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड व्हाट आई कैन डू इज, उस चीज़ को करने के डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं, है ना। अब यहाँ पे उस चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास ये कंप्लीट स्ट्रिंग थी, ठीक है, मैंने बोला कि मैं यहाँ से एक पैलिंड्रोम बनाने वाला हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से एक ये और एक ये, तो मैंने टोटल पार्टीशन कितने किए, मैंने टोटल पार्टीशन किए 2, ठीक है। और आई एम सेइंग फॉर नाउ कि ये जो 2 था ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन थे। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास और क्या थी कि मैं इन सारों को सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दूँ। तो अगर मैं इन सारों को सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स में डिवाइड कर देता तो मेरे पास ऑब्वियसली कुछ 2 से ज़्यादा पार्टीशंस आते, ओके, एंड सपोज तब मेरे पास आते 10 पार्टीशंस, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट ऑप्टिमाइज्ड बिकॉज आई हैव इन टोटल 2 पार्टीशंस बाय विच आई कैन मेक ऑल द सब स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम, ठीक है, जो मैंने इसके जस्ट पहले बताए थे। इसके जस्ट पहले कैसे पार्टीशन बताए थे, ये और ये, ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम और ये भी पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस which I have to do in a single string so that all the divided substrings will become palindrome in itself, okay। तो ये तीनों strings जो हैं ये palindrome बन जाए। ये मेरा हो गया पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइन। अब मैं सबसे पहले इसका क्या करने वाला हूँ, रिकर्जन सॉल्यूशन डेवलप करने वाला हूँ, है ना। रिकर्जन सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि हम सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये MCM से कैसे रिलेटेड है और फिर हम इसको कैसे MCM के कोड में क्या क्या चेंजेस आएंगे जिससे हम ऑब्वियसली क्या बनाने वाले हैं, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, ठीक है, ओके। तो रिकर्जन सॉल्यूशन के लिए हमें सारे के सारे पॉसिबिलिटीज लें। अब सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABACBCB, ठीक है, मैंने बोला कि मैं यहाँ और यहाँ से पार्टीशन करने वाला हूँ, बट ऑब्वियसली ये तो मुझे पता था पहले से। मैं एग्जैक्टली करने क्या वाला हूँ, मैं सारे के सारे पार्टीशन चेक करने वाला हूँ इसमें, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पार्टीशन यहाँ पे करूँगा और फिर मेरे पास ये 2 सब प्रॉब्लम्स, ये मेरी कंप्लीट एक प्रॉब्लम है दैट इज P। मैंने एक पार्टीशन अगर यहाँ से किया फिर मेरे पास 2 सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, P1 दैट इज ये और एक ये P2, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि मेरे पास इस P1 प्रॉब्लम का ये एक सेपरेट प्रॉब्लम बन गई जिसमें मुझे क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, और ये मुझे एक आंसर दे देगा C1, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि ये भी मेरी एक सेपरेट स्ट्रिंग बन गई, इसमें भी मुझे क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस, है ना। और ये मुझे सपोज इन केस C2 आंसर दे देगा। C2 में मेरे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं जो मेरे प्रॉब्लम P2 के हैं, ठीक है, और मेरे पास P1 के मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस किसमें है, C1 में, ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम P के मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकाल लूँगा, C1 प्लस C2 प्लस एक पार्टीशन मैंने
इन दो सब प्रॉब्लम्स को बनाने में किया था, ठीक है। तो P के पार्टीशंस कितने हो जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस 1। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी और बहुत ईजी सी चीज है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पॉसिबिलिटी, जब मैंने पहला पार्टीशन यहाँ पे किया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं एक पार्टीशन कहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं। अब मेरी कुछ P1 P2 बनेगी, ऑब्वियस सी चीज़ है। अब मेरी जब P1 P2 बनेगी तो P1 P2 के लिए मेरे पास कोई एक दूसरी वैल्यू मिलेगी, C1 डैश प्लस C2 डैश प्लस 1, ठीक है। जब मैंने पार्टीशन यहाँ से किया तो P का आंसर मेरा क्या आया, ये, ठीक है, फाइन। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये मिली, एक पॉसिबिलिटी ये मिली, एक पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। और इन सारों का मुझे क्या निकालना है एग्जैक्टली, इन सारों का मुझे एग्जैक्टली क्या निकालना है, मिनिमम, जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फाइन। मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या था, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस टू मेक ऑल द सब स्ट्रिंग्स आफ्टर पार्टीशनिंग द मेन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, ठीक है। और वो मुझे किससे मिल जाएगा, इन सब वैल्यूज का, जो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज में पार्टीशन करके देखा और उसकी मिनिमम वैल्यू मिली, उन सब का मिनिमम लेके, एंड दैट इज फाइन, यही मेरा टास्क था, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं ये क्या करूंगा, कैसे, मैं ये रिकर्जन का यूज करके करूंगा, है ना। मैं रिकर्जन का जैसे तुम लोगों को याद होगा MCM था, ठीक है, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ी है। MCM में हम क्या करते थे, मेरे पास एक मैट्रिक्स की चेन होती थी, दैट इज A1 A2 A3 एंड A4, है ना। और मैट्रिक्स की चेन में मैं एक लेफ्ट हैंड बनाता था, और वो लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली अगर पढ़ा है तो यहाँ से होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से होगा। यहाँ से एक लेफ्ट हैंड बनाता था, एक J बनाता था, और फिर मैं उनके बीच में पार्टीशन करता था, ठीक है। पार्टीशन इन द सेंस कि मुझे इन दोनों का पहले करना है और इन दोनों का पहले करना है, और फिर ये मेरी दो प्रॉब्लम्स बन जाती थी, P1 P2, और फिर मैं इनमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और फिर इनका क्या करता था मैं, फाइनल P1 प्लस P2 प्लस इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के ऑपरेशंस, इस तरह पूरा का पूरा आंसर निकालता था। तो उसमें भी मैं क्या करता था, एग्जैक्टली पार्टीशंस करता था, है ना। पार्टीशंस करने के बाद मैं सब प्रॉब्लम्स बनाता था, और फिर सब प्रॉब्लम्स का आंसर अलग से निकालता था। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, ये चीज़ तुम लोगों को अभी तक समझ में आ गई होगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस प्रॉब्लम इज अ वेरिएशन ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग इज अ वेरिएशन ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर होंगी आई गेस। अब सेकेंड थिंग, हम इनका रिकर्जन कैसे बनाएंगे। हमें रिकर्जन में, अगर तुम्हें पैलिंड्रोम MCM का कोड याद है तो तुम इसका रिकर्जन बहुत इजीली लिख लोगे, ठीक है। कुछ चेंजेस है ही नहीं, आई गेस सारा का सारा कोड सेम है, लाइक दो जगह चेंजेस हैं और बाकी सारा का सारा कोड चेंज है, बाकी सारा का सारा कोड सेम है, ठीक है। अब वो देखते हैं कि कैसे इसको रिकर्जन को लिखना है इसके। तो मैंने सबसे पहले बोला कि हम सबसे पहले मेन प्रॉब्लम P को दो प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने वाले हैं, और उस दो प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं पार्टीशन करना पड़ेगा, है ना। और वो पार्टीशन हम कैसे करते थे, ऑब्वियसली हम एक अभी हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, दैट इज S, ठीक है। उस स्ट्रिंग में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेंज बनाएंगे, दैट इज I एंड J, है ना। अभी ये मेरी पूरी प्रॉब्लम P की रेंज है, I और J। फिर मुझे एक प्रॉब्लम P1 मिलेगी, मैंने सपोज यहाँ से पार्टीशन किया, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, I, और J मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब मैं बोलूँगा कि I और J के बीच में मुझे पार्टीशंस करने हैं। तो पहला पार्टीशन यहाँ पे पॉसिबल है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक इटरेट करूँगा और सारे के सारे पार्टीशंस एक एक बार करके देखूंगा, ठीक है। सपोज मैंने इटरेट करने के लिया के इटरेटर ले लिया, मैंने फॉर लूप चला लिया और के इटरेटर ले लिया, ठीक है। के चलेगा कहाँ से, ऑब्वियसली ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम I और J की पोजीशन डिसाइड करते हैं, कि जैसे कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हमने I 1 से लिया था फर्स्ट इंडेक्स से, और J यहाँ से लिया था, ठीक है। बट यहाँ पे भी क्या वही ज़रूरत है या फिर कुछ चेंज होगा, ये देखते हैं। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा था, अगर हम I को यहाँ से ले रहे थे, ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स की डायमेंशंस थी, दैट इज एरे ऑफ I एंड एरे ऑफ I-1, वो गड़बड़ कर रही थी, बिकॉज I-1 इंडेक्स क्या हो जाएगा,
ओवरफ्लो वाला केस हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हमने सिंपल सा मॉडिफिकेशन किया था और हमने आई को 1 से बना लिया था। तो 1 और 0 हमें दो इंडेक्स मिल रहे थे और हम कह रहे थे कि वो हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमें आई को फर्स्ट इंडेक्स से लेने की ज़रूरत है? मैंने बोला कि मैं आई को यहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर आई को यहाँ से ले रहा हूँ तो क्या ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है? ऑब्वियसली है। अगर मैंने आई को यहाँ से लिया तो मेरे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, मुझे एक एस आई से लेके एस जे तक एक कंप्लीट स्ट्रिंग मिल रही है और जो मेरी प्रॉब्लम पी की स्ट्रिंग है। तो मुझे कोई भी गड़बड़ आई नहीं, इसमें तो कोई ऐसा वो सीन है नहीं दैट ए आई और ए आई -1 वाला, ठीक है फाइन। तो मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ से ए आई और ए जे ले लूँगा सिंपली। अब मुझे के डिसाइड करना है कि मैं लूप कहाँ से कहाँ तक, पार्टीशंस कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ। एक पार्टीशन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जे से जस्ट पहले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ कि मैं आई से स्टार्ट करूँगा पार्टीशन, के की वैल्यू आई से, और कहाँ तक जाएगी? के की वैल्यू जे तक जाएगी। अब क्या ये सही है क्या नहीं ये देखते हैं। मैंने के इज इक्वल्स टू आई किया, ठीक है। मैंने एक पार्टीशन यहाँ पे किया। यहाँ पे पार्टीशन करने के बाद मेरी प्रॉब्लम P1 और P2 क्या बनेगी ये देखता हूँ। प्रॉब्लम P1 जो मेरी बनेगी उसकी रेंज क्या हो जाएगी? I to K। I to K हुई अगर रेंज, और K की वैल्यू मेरी क्या है? इज इक्वल्स टू I ही है, ठीक है। दैट इज I to I। ये प्रॉब्लम P1 की है। I to I में मेरे पास क्या मिल जाएगा? एक सिंगल कैरेक्टर, दैट इज A। ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है? हाँ है। मैं इसमें पैलिंड्रोम चेक कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई को के से लेने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब के जे लेके चेक करते हैं हम, ठीक है। के को जे पे चेक करते हैं और ये मेरी P1 हो गई जब मैंने के इज इक्वल्स टू आई लिया, और P2 देख लेते हैं उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो P1 की रेंज मेरी सिंपली क्या हो गई? I to K। P2 की रेंज क्या हो जाएगी? K + 1 to J, और K + 1 क्या हो जाएगा? ये। तो एग्जैक्टली जब मैं K इज इक्वल्स टू आई लूंगा तो मेरा पार्टीशन कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये मेरा पॉसिबल पार्टीशन है, ठीक है। मैं इस तरह का एक पॉसिबल पार्टीशन कर सकता हूँ। दैट इज K इज इक्वल्स टू आई लेने में मेरी कोई गलती नहीं है, एंड आई कैन टेक K इज इक्वल्स टू आई। अब मैं K इज इक्वल्स टू आई से तो स्टार्ट कर दिया, K इज इक्वल्स टू J तक जा सकता हूँ कि नहीं ये चेक करता हूँ। तो K इज इक्वल्स टू जब मैंने J लिया उस केस में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है P1 और P2 की, ठीक है। K इज इक्वल्स टू J जब लिया मैंने तो मैं बोलूँगा कि अब मेरी जो P1 है वो क्या बन जाएगी? सिंपली P1 का रेंज क्या हो जाएगा? I से K, और K यहाँ पे J था तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? I to J। P2 क्या बन जाएगा? K + 1 to J, ठीक है। और K + 1 क्या हो जाएगा? J + 1 to J। क्या ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये कोई एक स्ट्रिंग है J + 1 से J? तुम J + 1 से J कोई पार्टीशन ले सकते हो? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। ये एक पॉसिबल स्ट्रिंग है ही नहीं J + 1 से J। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू फ्रॉम हियर इज कि मैं इस K इज इक्वल्स टू J की जगह क्या कर दूंगा? इसको K इज लेस देन J, जैसे कि मैंने MCM में किया था। आई गेस वहां पे तुम्हें सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। तो दैट्स वाई अब मैंने ये चीज डिसाइड कर ली कि मेरा जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा? K इज इक्वल्स टू आई से लेके K लेस देन J तक, ठीक है। इक्वल्स टू J क्यों नहीं होगा? वो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूफ कर दिया, ठीक है फाइन। अब मुझे सिंपली इसका रिकर्जन कोड शुरू करना है, और रिकर्जन कोड शुरू करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, बेस केस, और बेस केस के बाद सिंपल सी जो मेरा लूप में इटरेशन का केस होगा, ठीक है। पार्टीशन में मुझे आंसर अपडेट करना होगा, तो वो चीज़ मैं आपको कोड दिखाता हूँ सीधे और वहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। एक ऑब्वियसली मेरे पास फंक्शन होना चाहिए जिससे मैं चेक करने वाला हूँ कि मेरी जो करंट स्ट्रिंग है जो I और J की रेंज में आ रही है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, और वो आई गेस तुम लोग ऑलरेडी बना चुके होगे या फिर काफ़ी बार कर चुके होगे, तो वो मैं समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन रहा रिकर्जन फंक्शन, इसमें मैंने तीन चीज़ें डाली, दैट इज स्ट्रिंग I और J, ठीक है। अब ये मेरा बेस केस रहा, दैट इज I इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू J हो गया, या फिर
करंट आई और जे पैलिंड्रोम है तो मुझे रिटर्न 0 करना है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये देखो, आई और जे मेरे लेफ्ट हैंड थे, ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन जे हो गया तो ये केस तो मेरा ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। इस केस में तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक पॉसिबल स्ट्रिंग है ही नहीं जब लेफ्ट हैंड राइट के आगे चला जाए, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू जे की बात करते हैं। i इज इक्वल्स टू जे है अगर, इट मीन्स आई हैव ओनली वन कैरेक्टर। समझ में आया ये चीज? i इज इक्वल्स टू अगर j है, इट मीन्स कि जो मेरी ये स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसी है a, तो यहाँ पे i भी आएगा, यहाँ पे j भी आएगा। तो इस केस में भी मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है, फाइन। थर्ड बेस केस क्या हो सकता है कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे i है और यहाँ पे j है, ठीक है, और ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। तो इस केस में तुम्हारा एक पॉसिबल आंसर क्या है, 0, क्योंकि तुम्हें एक भी पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। दैट्स वाई ये तीनों बेस केस में तुम्हारे आ गए, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू j, और तुम्हारी जो करंट स्ट्रिंग i j वो पहले से पैलिंड्रोम है तो तुम्हें रिटर्न 0 करना है, ठीक है। फिर तुमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें तुम अपना आंसर स्टोर करने वाले हो और उसको ऑब्वियसली इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया, और एक काउंट ले लिया जिसमें तुम अपनी करंट पार्टीशन का आंसर स्टोर करने वाले हो, ठीक है। फिर तुमने कहां से कहां तक लूप चलाया ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, k इज इक्वल्स टू आई से j तक, लेस देन j तक, और करंट पार्टीशन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली i से k तक, ये तुम्हारी p1 का आंसर, k+1 से j तक, ये तुम्हारा किसका आंसर, p2 का, और करंट पार्टीशन जो तुमने ये यहाँ पे किया था p1 p2 के बीच में, उसके लिए +1, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली तुमने क्या किया, रिकर्जन फंक्शन कॉल किया i से k तक, दूसरा k+1 से j तक, और तीसरा +1 फॉर करंट पार्टीशन p1 और p2 को पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में तुम सिंपली क्या कर दोगे, अपने आंसर को अपडेट, दैट इज फ्रॉम बाय मिनिमम ऑफ आंसर एंड काउंट, ठीक है। एंड एट द एंड जब तुम सारे पॉसिबल पार्टीशन चेक कर चुके होगे उसके बाद तुम अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली क्या देखने वाले हैं, इसमें मेमोइजेशन करेंगे, इस सेम कोड में हम मेमोइजेशन करेंगे, ठीक है, और इसी को हम क्या बना देंगे, डीपी, ठीक है, ऑप्टिमाइज मेमोइजेशन करेंगे हम। और सिंपली हमारा पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये एमसीएम से रिलेटेड है, कैसे हम इसका रिकर्जन कोड लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसका मेमोजाइज वर्जन खुद से लिख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कैसे आप इसकी वेरिएबल स्टेट्स जो हैं उसका एक कंटेनर बना के उसको मेमोजाइज कर सकते हैं, ठीक है। Thank you guys for watching this video. If you still haven't checked Newton School yet, just go to newtonschool.co, check their website, check their pay after placement program and launchpad initiative. If you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel. Thank you guys for watching.